Hello students, myself Kuljeet Kaur, lecturer biology in Government Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, in my previous video, we discussed about population explosion, what are the various causes and consequences of population explosion. ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਐਂਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਜਨ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਾਂਗੇ। In today's video, in my today's lecture, we will discuss about various birth control measures. So let's start today's topic. Okay student. Now students, what are birth control measures? The main aim of the birth control measures is to check population growth rate. ठीक है, so mainly ਜਿਹੜੇ birth control measures ਨੇ they include various types of contraceptives. So ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ various type of contraceptives ਬਾਰੇ discuss ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ important ਨੇ population growth ਨੂੰ control ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਬੋਲੀਏ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਵਰਡ ਹੈ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬੋਲੋ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ। ਜੋ ਪਰਸਨ ਉਸ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਸਨ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ। ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੀਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਨੋ ਔਰ ਲੀਸਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ। ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਸਨ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਆਈਡੀਅਲ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੈਟਸ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਮੈਥਡਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਮਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ ਓਵਮ ਐਂਡ ਸਪਰਮ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜ਼ਾਈਗੋਟ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਪਰਮ ਔਰ ਓਵਾ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੌਂਡੋਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੌਂਡੋਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਬਰ ਦੇ ਜਾਂ ਲੇਟੈਕਸ ਦੇ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਪੁੱਟ ਔਨ ਦਾ ਮੇਲ ਪੀਨਿਸ ਬਿਫੋਰ ਕੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਵੈਜਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਰੋਧ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਡੋਮਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਡਸ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨਲੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਕੌਂਡੋਮਸ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਆਫਰਮਸ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਪਸ। Diaphragms and cervical caps.
ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰਬਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫੀਮੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿਜਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਫੀਮੇਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਆਫ੍ਰਮਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਕਲ ਕੈਪਸ। they are made from rubber and they are fitted in the vagina of the female. And why they are important? Because they check the entry of the sperms inside the female uterus. So let's see the next one. Okay, ਜਿਹੜੇ थर्ड बैरियर methods ने they are known as IUD। बच्चे IUD ਦਾ फुल फॉर्म है intrauterine devices। सो मोस्टली ਇਹ कॉपर टी इसका एग्जाम्पल है या लूप्स होंगे ने, ये की होंगे ने फीमेल जरा यूट्रस है उसके अंदर फिट हो जाते हैं और ये फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे, दे प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, राइट। सो इस दे विच बहुत सारे IUDs मार्केट दे विच अवेलेबल ने। कुछ IUDs ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ नॉन ਮੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਪਸ ਲੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੁਝ IUDs ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ IUDs ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 4 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਟੇਜ 3 ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ IUDs ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ IUDs ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। एग्जाम्पल जिमें CUT है, CU7 है, इस तरह ही मल्टी लोड 375 होंदा है, भी तुसी नोट कर सकते हो। मल्टी लोड 375, दिस इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ IUD। सो ये की करते हैं बच्चे, एक कॉपर रिलीज़ करते हैं और कॉपर के नाल जिहड़ा स्पर्म है उसकी जिहड़ी मोटिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। स्पर्म मोटाइल नहीं रहता, इस करके स्पर्म अगे जाके विजाइनल ट्रैक में जाके एग नू फर्टिलाइज नहीं कर सकता, जिस दे नाल कि एक बैरीयर क्रिएट हो जाता है, राइट। उस तो बाद थर्ड जिहड़े ने दे आर नोन एज हार्मोन रिलीजिंग IUDs। इन्हां दे विच ये हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और इस दे नाल की हुंदा है, जिहड़ा यूट्रस हुंदा है वो अनसुटेबल हो जाता है फॉर द इम्प्लांटेशन। क्योंकि आपां देखिया कि जदों फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो किस तरह ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस 'च इम्प्लांट होता है। बट ये वो IUDs ने जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं और इस दे नाल की होएगा कि जिहड़ा यूट्रस है वो अनफिट हो जाएगा और यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होएगा। सो इत्थे मैं यूट्रस के विच एक थानू दिखाया है, कॉपर टी दिखाई है जो कि फीमेल यूट्रस के विच IUD फिट होया हुआ है, जो कि एक बैरीयर का काम करेगा और जिहड़ा वो स्पर्म्स है, स्पर्म्स जो आएंगे तो स्पर्म नू एग दे कोल नहीं जान देगा। सो आई होप बच्चे ये जिहड़े 3 मैथड मैं थानू दसे हैं ये मैकेनिकल और बैरीयर मैथड्स ने। फर्स्ट वन इज़ कॉन्डोम्स, सेकेंड इज़ द डायाफ्राम or the cervical caps, and third one is IUDs which are known as intrauterine devices. Okay, so let's go to the next slide बच्चे। So this we have already done. Okay, now we come to the next or the second methods, birth control methods. They are known as chemical methods. So we have different type of chemical methods. First is known as spermicidal tablets, jellies or creams। spermicidal as the name indicates ये वो टैबलेट्स ने, वो जेलीज, क्रीम्स या पेस्ट ने जो कि स्पर्म्स नू किल कर देंगे ने, ठीक है। सो ये फीमेल जिहड़े हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने विजाइना के अंदर, वो अप्लाई कर देंगे ने बिफोर द कोइटस और ये स्पर्म नू किल कर देंगे ने। सो ये जिहड़े स्पर्मिसाइडल कैमिकल्स ने मोस्टली इन्हां दे विच सिट्रिक एसिड हुंदा है या लैक्टिक एसिड हुंदा है, ठीक है। समटाइम्स इन्हां कोल जिंक सल्फेट भी हुंदा है। सो दे आर वेरी गुड chemical methods to control the pregnancy। Second method हैगा oral devices, they are hormonal pills। ये फिजियोलॉजिकल डिवाइसिस ने, ये पिल्स ने जो कि आपां लेडी जिहड़े ने फीमेल उसनूं खांदे ने। सो ये जिहड़े हार्मोनल पिल्स हुंदे ने ये एक कॉम्बीनेशन है किस चीज़ का, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का, ठीक है। 2 हार्मोन्स का मैं नाम ले रही हाँ, उसका एक कॉम्बीनेशन होंगे ने प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन्स। और ये जिहड़े पिल्स ने इन्हां नूं असीं कंबाइंड पिल्स कहते हैं।
ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਔਰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੋਨੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਜੋ FSH ਔਰ LH ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਿਕਰੀਸ਼ਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਓਵੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰੀ ਤੋਂ ਔਰ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ नहीं होएगा। You understand बच्चे what I am saying? When progesterone and estrogen they are taken together in combination in the combined field, so what will happen? They just stop the secretion or inhibit the secretion of FSH and LH from pituitary, right? So then there will be no ovulation, no implantation. So in India ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ common name है, this is Maladi and second is Saheli. सो मालाडी एंड सहेली दीज आर हार्मोनल पिल्स जो कि बर्थ कंट्रोल मेजर्स यूज़ हो रही ने। मालाडी डेली ली जा रही है और सहेली जी है वो एंटी एस्ट्रोजन पिल्स ने जो कि वीकली लिखी जाती है, ठीक है। सो ये जोड़े हार्मोनल पिल्स ने या जोड़े ओरल डिवाइसिस ने इन्हां दी कॉन्ट्रासैप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इन्हां दे साइड इफेक्ट्स जोड़े ने वो बहुत घट है ने। कुछ ये ड्रॉबैक्स ने कि जिवें थोड़े जे साइड इफेक्ट्स होंदे ने, जिवें नॉजिया हो जाता है, कई बार परसन वेट गेन कर लैंदा है एंड समटाइम्स ब्लीडिंग होने लग जाती है ड्यूरिंग मैंसुरेशन दे विच थोड़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो थोड़े जे इसके साइड इफेक्ट्स हैं बट अदरवाइज इन्हां दी जिहड़ी कॉन्ट्रासैप्टिव वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। नैक्सट ओके बच्चे, कैमिकल मैथड दे विच जो थर्ड नंबर ते जिहड़े बैरियर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं इम्पलांट्स। वॉट आर इम्पलांट्स? इम्पलांट्स एक तरह के स्टिक्स ने, देखो तुहानूं इस तरह के स्टिक्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टिक्स ने जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं। सो ये जिहड़े ने ये प्रोजेस्ट्रॉन हुंदे ने या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बीनेशन दे ये स्टिक्स ने जिसनों कि असी फीमेल जिहड़े ने वो अपने स्किन दे अंडर स्किन दे नीचे इन्हों इम्पलांट कराया जाता है और इन्हां दे मतलब कि इफेक्टिव हैगे ने। इन्हां नूं असी एमरजेंसी कॉन्ट्रासैप्टिव भी बोलते हैं। वॉट इज़ एमरजेंसी कॉन्ट्रासैप्टिव? बच्चे कई बार कोई एमरजेंसी केस होंदा है कि प्रेगनेंसी हो गई या रेप केस हैगा कि जिथे कि बच्चा उसका रेप हो गया, कोई ट्रैजिडी हो गई, तो ये इस तरह के कॉन्ट्रासैप्टिव्स ने, इन्हों असी एमरजेंसी कॉन्ट्रासैप्टिव्स बोलते हैं। सो ये प्रेगनेंसी नहीं होने दिंदे। सो ये भी साडे कैमिकल मैथड्स दे विच तीसरा ग्रुप है जिन्होंने असी इम्पलांट्स कहने आ। सो इन्हां दा जिहड़ा दे हैव मच लॉन्गर इफेक्टिव पीरियड, सो दे आर वेरी इफेक्टिव इवन विदिन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। कोइटस मीनस सैक्चुअल इंटरकोर्स के 72 आवर्स के विदिन भी ये अपना काम करते हैं एंड दे आर वेरी इफेक्टिव। सो दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी एंड दे आर नोन एज इम्पलांट्स। ओके, नाउ नैक्सट बच्चे आपां हुण मकैनिकल मैथड्स कर ले बर्थ कंट्रोल दे, उस तो बाद आपां कैमिकल मैथड्स कर ले। नाउ वी हैव द थर्ड टाइप ऑफ मैथड्स विच आर नोन एज नैचुरल मैथड्स। नैचुरल मैथड्स नॉर्मल जिहड़ा बॉडी का फीमेल बॉडी का जिहड़ा नैचुरल रिदम है, नैचुरल जिहड़ा साइकिल चलता है फीमेल बॉडी का उसके उपर बेस्ड हुंदे ने और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होंदा। ਆਪਾਂ सब तो पहला जिहड़ा नैचुरल मैथड डिस्कस करन जा रहे हैं अंडर बर्थ कंट्रोल मेजर्स, दैट इज़ विड्रॉल मैथड और द क्वाइटस इंटरप्टस। वॉट इज़ विड्रॉल मैथड? विड्रॉल मैथड ये होंदा है कि जदों सैक्चुअल इंटरकोर्स के टाइम ते मेल जिहड़ा हैगा वो अपने स्पर्म्स नूं इजैक्यूलेट करन तो पहला उसनूं विड्रॉ कर लैंदा है। उसका जिहड़ा डिस्चार्ज है वो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं करता, इस दे नाल सीमेन जिहड़ा हैगा वो फीमेल के अंदर डिपॉजिट नहीं होता। सो इसनूं असी विड्रॉल मैथड कहते हैं। सो ये एक ओल्डेस्ट मैथड है, आप इनू कह सकते हैं। सो ये एक आप इस नैचुरल तरीका है जिहदे नाल कि आप प्रेगनेंसी नूं रोक सकते हैं। सैकेंड जिहड़ा हैगा उसनूं असी रिदम मैथड कहते हैं या पीरियोडिक इनू कहते हैं पीरियोडिक एब्सटीनेंस यस। सो ये की होंदा है कि मोस्टली आप देखा कि ओव्यूलेशन जी है वो 14th डे ते होंदी है, राइट। सो 13 तो लैके बच्चे जिहड़ा अपना 10th तो लैके जिहड़ा 17th डे होंदा है मैंस्ट्रुअल साइकिल का, आप ऑलरेडी मैंसुरेशन साइकिल देखा। सो 10th तो लैके जिहड़ा 17th डे है मैंसुरेशन का, ये जिहड़ा डे है इसनूं असी रिस्क डे, डेंजर डेज या फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। सो रिदम पीरियड का किस तरह ध्यान रखा जाता है? इस पर्टिकुलर पीरियड दे विच जिहड़े कपल्स ने वो सैक्चुअली इनवॉल्व नहीं होंदे या क्वाइटस नहीं करते,
क्योंकि इस दे पीरियड दे विच ओव्यूलेशन एक्सपैक्टेड हुंदी है और इस पीरियड दे विच जिहड़े फर्टिलाइजेशन ने उस दे चांसिस बहुत ज़्यादा होंदे हैं। सो ये एक रिदम पीरियड है जिस दे विच कि असी इस चीज़ का माइंड विच इसनूं ध्यान दे विच रख के जिहड़े कपल्स हुंदे ने वो प्रेगनेंसी के चांसिस नूं स्टॉप कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और ये 80% प्रेगनेंसी चांसिस जिहड़े ने वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, नैक्सट उस तो बाद नैक्सट हैगा लैक्टेशनल एमीनोरिया। वट इज़ लैक्टेशनल एमीनोरिया? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन के विच ही ये पूछा जाता है। ਜਦੋਂ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਂਸ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਫਟਰ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਨੀਅਰਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਦੇ ਆਰ ਨੀਅਰਲੀ ਨਿਲ। सो ਇਹਦਾ कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये इफेक्टिव है ओनली अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सिर्फ पार्टूरेशन दे 6 मंथ्स तक ये चीज़ इफेक्टिव है, नॉट ऑलवेज, एंड दिस इज़ नोन एज लैक्टेशनल एमीनोरिया। ओके, सो ये इंटेंस लैक्टेशन के पीरियड के विच आपां इसनूं फॉलो करके प्रेगनेंसी नूं रोक सकते। ओके, सो ये साडे नैचुरल मैथड सीगे जिहदे च कि फस्ट आपां विड्रॉल मैथड करिया, ठीक है, दैन सैकेंड रिदम मैथड सीगा, दैन लैक्टेशनल एमीनोरिया सीगा। सो ये साडे नैचुरल मैथड्स ने ऑफ चाइल्ड बर्थ कंट्रोल। नैक्सट है सर्जिकल मैथड्स। ओके, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे। सर्जिकल मैथड सर्जरी है, ये वो मैथड्स ने जो कि गैमीट्स नूं ट्रांसपोर्ट नहीं होण दिंदे और इस दे नाल कंसैप्शन नहीं हुंदा, और ये मैथड्स बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव मैथड्स ने और बट देयर रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी लो। जे आपां इहनूं कहीए कि इस मैथड तो बाद अगर असीं इहनूं रिवर्स कर दईए कि दोबारा तो असीं अगर सपोज चाहते हैं कि कई बारी कोई कपल है उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है और दे गो फॉर सर्जिकल मैथड्स, लेकिन समटाइम्स कोई ट्रैजिडी हो गई या कोई बच्चे की डेथ हो गई और तो दोबारा चाहते हैं कि साडा होर दोबारा तो बच्चा पैदा हो जाए, तो ये जिहड़े मैथड्स ने इसनूं रिवर्स करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सो इस दे विच 2 मैथड्स ने। फस्ट मैथड नूं असीं वैसिकटॉमी कहने हैं। वैसिकटॉमी एक मेल दा स्टरलाइजेशन मैथड है, एक बर्थ कंट्रोल मैथड है। इस दे विच 2 चीज़ां हुंदियां, एक नूं असीं कैस्ट्रेशन बोलते हैं। वॉट इज़ कैस्ट्रेशन? जदों कि मेल दे जिहड़े टेस्टीज़ ने सर्जरी करके जिहड़े टेस्टीज़ हुंदे ने उस नूं असीं रिमूव कर दिंदे हां। सो टेस्टीज़ ही नहीं होंगे तो ऑब्वियसली स्पर्म ही नहीं प्रोड्यूस होएगा, तो देयर इज़ नो चांसिस ऑफ एनी कंसैप्शन। सो फस्ट मैथड इज़ दिस, एंड सैकेंड जिन्हों आपां वैसिकटॉमी बोलिया वो की हुंदा है कि जिहड़ा मेल दा जिहड़ा वास्ट डिफरेंस है। बच्चे यू रिमेंबर मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा एपीडाइडाइमिस है, सो एपीडाइडाइमिस जिवें मेल दा जिहड़ा टेस्टीज़ है, टेस्टीज़ दे कोल एपीडाइडाइमिस है, एपीडाइडाइमिस तो वास्ट डिफरेंशिया जाता है जो कि अगे जाके इजैकुलेटरी डक्ट दे नाल जुड़ जाता है। सो इस दे विच की हुंदा है, जिहड़ी वैसिकटॉमी हुंदी है इस दे विच जिहड़ा वास्ट डिफरेंशिया है उसनूं असीं कट करके टाई कर दिंदे हां। सो देयर इज़ नो चांसिस, कोई मेल का जिहड़ा स्पर्म है वो रिलीज़ नहीं हुंदा। इत्थे एक बहुत इंपॉर्टेंट गल बच्चे मैं तुहानूं दसना चाहनी हाँ कि मोस्टली बच्चे ये पुछते भी हैं गल कि जदों वास्ट डिफरेंशिया नूं कट करके टाई कर दिता जाता है तो मेल जिहड़ी सिक्रीशनस निकलदी हैं वो एज इट इज़ मेल डिस्चार्ज करता रहता है, लेकिन मेल का जिहड़ा सीमेन हुंदा है उस दे विच स्पर्म्स नहीं हुंदे। अदरवाइज जिहड़ियां उहदियां सिक्रीशनस ने जो उहदे ग्लैंड्स तो आ रही ने, जिवें आपां कॉपर्स ग्लैंड देखिया सी, दैन प्रोस्टेट है, दैन सेमिनल वेसिकल्स ने, वो सिक्रीशन एज इट इज़ इजैकुलेटरी डक्ट तो हुंदियां यूरिनोजेनाइटल कैनाल तो बाहर आउणगियां, लेकिन उस दे विच जिहड़ा सीमेन होएगा दैट विल बी विदाउट स्पर्म्स, राइट। सो सैकेंड आई होप ये तुहानूं समझ आ गया होएगा बच्चे। उस तो बाद जिहड़ा ईवन जिहड़े मेल दे विच जिहड़े सैक्स हारमोन्स पाते हैं उसका भी इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि ओवरीज जिहड़े टेस्टीज जो सैक्स हारमोन प्रोड्यूस करनगे, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करनगे, वो ब्लड दे विच रिलीज़ हुंदा है, ना ही कि वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे नाल अगे ट्रांसपोर्ट हुंदा है। सो ये एक बहुत ही इफेक्टिव मैथड है, हाईली इफेक्टिव मैथड है, दैट इज़ सर्जिकल मैथड।
Now, let us see the second method which takes place in the females, and that is known as tubectomy. Tubectomy female sterilization है और इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਓਵਰੀ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਜੀਕਲੀ ਓਵਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਵਰੀਟੋਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਟਿਊਬਿਕਟੋਮੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਮੰਥਲੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਐਗ ਅੱਗੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਿਊਬਿਕਟੋਮੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਟਰਸ ਲਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡੋਮੀਟਰੀਅਮ ਜੋ ਰਪਚਰ ਹੋਏਗੀ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਮੈਥਡਸ ਨੇ, ਵੈਸਿਕਟੋਮੀ ਐਂਡ ਟਿਊਬਿਕਟੋਮੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਂਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਬੈਰੀਅਰਸ ਦੇਖੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੌਂਡੋਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਆਫਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਓਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਚੀਪ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਜਰਸ ਦੇ 4 ਮੈਥਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ। फर्स्ट इज़ मकैनिकल और बैरियर मैथड, जिस दे अंडर कि आप कॉन्डोम्स, डायफ्राम्स और सर्वाइकल कैप्स किते। सो फर्स्ट बच्चे आप अपना मकैनिकल मैथड्स किते, कॉन्डोम्स ने, डायफ्राम्स ने एंड सर्विकल कैप्स ने, एंड उस तो बाद आप किते आईओडीज, दैट इज़ इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। उस तो बाद नैक्सट आप नंबर 2 आप कैमिकल मैथड्स किते। कैमिकल मैथड्स के भी स्पर्मीसाइडल टैबलेट्स ने, हार्मोनल पिल्स ने, एंड उस तो बाद आप उस दे विच आप इंप्लांट्स किते। नैक्सट सीगा इंप्लांट्स, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप मैथड्स किते नैचुरल मैथड्स, जिहदे कि विड्रॉल मैथड सीगा, कोइटस इंटरप्टस, दैन ब्रिदम पीरियड सीगा, और उस तो बाद लैक्टेशनल एमीनोरिया, जिहदे मैं तुहानूं दस्सिया कि पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन दे विच मैंसुरेशन नहीं हुंदा और चांसिस ऑफ कंसैप्शन जिहड़े ने वो बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, नीयरली निल हो जाते हैं, ठीक है। पर उस दे विच बहुत इंपॉर्टेंट गल दसी सी कि इट इज़ इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सीमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर पार्टिट्यूशन, हर समय ये नहीं रहेगा। नैक्सट फिर उस तो बाद आप लास्ट जिहड़ा मैथड किया जो कि मेल और फीमेल्स दोनों के विच ये लै सकते हैं, एक टर्मीनल पीरियड है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रैगनेंसी, ठीक है। एक गमीट के ट्रांसपोर्ट को रोकता है और ये हाईली इफेक्टिव है, बट ये रिवर्सिबिलिटी बहुत लो है। जिमें अगर आप कैस्ट्रेशन करता, टेस्टिस असी रिमूव भी करते या आप ओवरीज रिमूव करते तो दोबारा तो वो कपल जिहड़ा है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता नॉर्मल तरीके दे नाल, राइट। सो मेल दे विच जिहड़ा मैथड यूज़ होंदा है उसनूं असी वैसिकटोमी कहने आ, और फीमेल दे विच जिहड़े आपां फिलोपियन ट्यूब नूं कट करके टाई कर दिंदे हाँ उसनूं असी ट्यूबिकटोमी बोलते हाँ। सो ये सर्जिकल मैथड्स ने जिस दे नाल कि आपां बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप तुहानूं अज दा ये लैक्चर समझ आ गया होएगा। इहदे विच मैं जिन्ने भी पॉइंट्स दस्से ने बहुत इंपॉर्टेंट ने, तुसीं उन्हां दे नोट्स बनाओ और नोट्स बना के जिहड़े मेन तुहानूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स दस्से ने उन्हां नूं अंडरलाइन करो, क्योंकि एग्जाम्स दे विच कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक दे विचों हमेशा आंदा ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच बच्चे, हैव ए नाइस डे।